Hello, Assalamu alaikum to all of my students. This is my third consecutive lecture of electrochemistry. So let us begin with. Today we have to go for the terminology, some basic concepts in order to understand the electrochemistry in a better way. So this is the terminology of electrochemistry. So first is the Ohm's law. Ohm's law, you know that you have already studied it in your 10th class also. So what is the Ohm's law and what is it all about? So this law was given by George Simon Ohm. He was a German physicist and he gave this law in 1827. And one more important point about Ohm's law is that it is applicable to both metallic conductors as well as electrolytes. ये मेटलिक कंडक्टर्स के लिए भी ओबे होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ओबे होता है. तो जो ये जनरलाइजेशन है जिसका नाम ओम्स लॉ है, ये क्या है? ठीक है, तो यहां पे मैं बताऊंगा. इफ यू हैव आर हैविंग ए कंडक्टर, लेट अस सपोज अ मेटलिक कंडक्टर, और ये मेटलिक कंडक्टर आपने कनेक्ट किया towards a source of battery having a potential difference of V volts, it means that this potential difference of V volts is applied across the ends of this conductor, and because of this potential difference the current will be flowing through this conductor. इस potential difference की वजह से current flow होगा through the conductor and direction of the current will be like this. आपको पता है this is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery, means that electrons are moving away from the negative terminal of the battery towards the positive terminal of the battery. So the flow of the electrons will be like this. So this will be the flow of the electronic current. But what is the direction of the actual current, the conventional current? That is the direction of the flow of the positive charges. That means opposite to the direction of the electronic current. 10th में पढ़ते हैं, this is conventional current. Now ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ये ओम्स लॉ हमें एक जनरलाइजेशन देता है, एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, सो व्हाट इट टेल्स अस कि हाउ इफ वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, हाउ इट विल ब्रिंग अ चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, क्या हमें ओम्स लॉ बताता है? ये बताता है हमें कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जो हम अप्लाई करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. मींस दैट जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट flowing through the conductor will increase. So it means that it is having a direct relationship with the potential, means that the current is having a direct relationship with potential difference. As we are increasing the potential difference of this battery, so as the current flowing through the conductor will increase accordingly. So we know that whenever we have this proportionality sign, we have to change it into the equality sign, so as to make this equation applicable for different types of variables. So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, when we are changing changing the proportionality into equality, so always we have to multiply by a constant. So it will be V equal to constant times I, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं V by I is equal to constant. ठीक है, तो इस तरह से भी हम ओम्स लॉ की डिफिनेशन बता सकते हैं. हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट जो है, ये इसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए. So R is the resistance, the constant of proportionality is actually known as the resistance of a conductor. बहुत सारे factors पे depend करता है.
ये रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक फैक्टर है टेम्परेचर, सो इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। सो जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, जब हम स्टेटमेंट ओम्स लॉ का देंगे, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference applied across the ends of a current across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. But point to be noted here कि ये जो ओम्स लॉ है, it is not universal, though it is a unique one, but it is not universal. ये हर जगह applicable नहीं है, it is applicable under certain conditions. and वो conditions क्या है कि जब physical conditions of the conductor remain constant, जब फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तब जाके ये ओम्स लॉ दिस होल्ड गुड करेगा. फॉर एग्जांपल फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, देन ओनली द ओम्स लॉ इज ओबेड. क्योंकि आपको पता ही है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे कंडक्टर का, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉलो दिस what will happen, the resistance, जो अपने इससे पहले लेक्चर्स पढ़े हैं कि resistance of the conductor is increasing. In case of a metallic conductor, the resistance is increasing. So when resistance is increasing, current is decreasing. So there will not be a direct relationship of potential difference and the current. Okay. So इसी तरह temperature है या mechanical stress है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ a conductor, this applied on a conductor, it should remain constant, temperature should remain constant, then only this Ohm's law is obeyed. So what is Ohm's law? It is it states that when the potential difference is applied across the ends of a conductor, a current is current starts flowing through it, and that the potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor, provided the physical conditions of a conductor like temperature, mechanical stress, etc. will remain constant. Okay, so now we can go for the, यहाँ पे एक चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जगहों पे हमें आती है. सो अगर हम बताएंगे व्हाट एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस इज, ठीक है, हालांकि इट इज अ कंसेप्ट इन फिजिक्स व्हिच यू हैव टू डील विद देयर, बट लिटिल बिट आई विल टेल यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं, इसके नेम से इंडिकेट करता है दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, इज इट और नॉट? तो जब हम डिफरेंस इन पोटेंशियल्स की बात करते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल्स का मतलब है कि वी शुड नो व्हाट एक्चुअली द पोटेंशियल इज, or more precisely we can call it electric potential. So when we know the electric potential, we will know the difference in potential. When we know the difference in potential, we know the potential difference. Clear? So electric potential क्या होता है? तो जब हम electric potential की definition बताते हैं, मैं आपको conceptually ऐसे understand करूंगा. हम कहते हैं कि how much extent the body is electrified. So it tells us about the extent of electrification of a body. कि कितनी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हुई है, कितनी बॉडी चार्जड है, दैट रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? गॉट माय पॉइंट? और यहां पे इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, देन ओनली देयर इज द फ्लो ऑफ द चार्ज. ये मैं बताऊंगा आगे चलकर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अगर कोई कहेगा तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी कितनी इलेक्ट्रिफाइड है. और हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ओनली. सो वी नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, एंड फ्रॉम दिस वी वुड बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ potentials. We will be having positive potential and we will be having negative potential. Okay, this is an extra information. So now if I am having a body here, ठीक है, a spherical body, we know that charge rests on its surface, and if it is having a positive potential and there are, let us suppose, 8 units of positive charge on the body, and it would be having its own a definite electric potential. Okay, because potential refers to the concentration of the charge on the body. Okay, so here is another body. Let us suppose it is having a 4 units of positive charge. Clear? So it will be having
its own positive potential. तो अगर मैं बात करूंगा potential is directly proportional to the charge on the body, तो यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है कि यहां पे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो आप सीधे ही कहोगे यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, सो इट विल बी हैविंग हायर पॉजिटिव पोटेंशियल. So what about this one? It will be having lower positive potential. So अब जाके अगर हम इन बॉडीज को कंटैक्ट में लाएंगे या हम इनको कनेक्ट करेंगे बाय मीन्स ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्जेस. सो कहां से? फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल टू लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल, देयर विल बी द फ्लो ऑफ द चार्जेस. एंड व्हेन देयर इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस, देयर इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, so that means the difference in the potentials, electric potentials of the two bodies have generated the electric current. ठीक है? So when there is a difference in the potentials, let us suppose if this is having a V2 potential and it is having a V1 potential, so potential difference delta V will be V2 minus V1. Okay, so this difference in the electric potentials of the two bodies will be the potential difference. But now the point is, how long the charge will flow? The charge will flow till the electric potentials of the two bodies will become equal. जब दोनों bodies का electric potential equal होगा, because there will be the flow of the charges from higher potential to lower potential, तो दो bodies उसके बाद जब इनका equal potential आएगा, तो उसका मतलब है जब equal इसका भी उतना ही potential आएगा, उतना ही इसका, तो potential difference क्या होगी? तो potential difference will be equal to 0. उसका मतलब क्या है? V2 हमारे बराबर आएगा V1. So when the potential difference between the two bodies becomes 0, there will be no flow of the current. So whenever there is a potential difference, there is the current flowing through the conductor. And when the potential difference becomes 0, there will be no current flowing through the conductor. Okay. So now moving onwards, we were on the resistance. So जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अभी हमने, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V by I is equal to R. तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. What is the resistance? We can say that it is the ratio of the potential difference applied across the ends of a conductor to the current flowing through it. That is known as the resistance. It is always a constant and that constant is known as the resistance. That way also we can define it. Or else हम अगर actual definition बताएंगे what is the resistance, हम कहते हैं it is the obstruction to the flow of the current. ठीक है? So how much obstruction will be there in the flow of the current, that will refer to the resistance. Means जब ये electrons move करेंगे through a conductor, इन electrons को कितनी hindrance आएंगी to move, कितनी hindrance आएगी while moving through the conductor, that is referring to the resistance. जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक conductor बनाऊंगा. Let us suppose it is a metallic conductor. Let us suppose it is made up of copper, yeah, it is made up of iron, yeah, it is made up of this cobalt or nickel, whatever. तो मैंने जब ये मेटल रॉड ली यहाँ पे, तो ये मेटल रॉड मेटलिक एटम्स की बनी हुई होगी. ठीक है? तो ये मेटल एटम्स जो है, लेट अस सपोज मैंने इसमें इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर रॉड मैंने ली, तो इसमें कॉपर एटम्स होंगे. ठीक है? तो ये कॉपर एटम्स जो है, दे विल बी एट फिक्स्ड पोजीशंस इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ अ मेटल. एज पर द बैंड थ्योरी, हमें बैंड थ्योरी क्या कहती है कि जो ये कॉपर मेटल है, it is losing its outermost valence electrons and it is changing into the dipositive ions. ठीक है? तो ये जो कॉपर dipositive ions है, they are actually taking their lattice points in their crystal. So these are the positive charged copper ions. तो इनका हम दूसरा नाम भी देते हैं, they are also known as metal kernels. अब इसमें क्या रहे? इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये फ्री रहते हैं यहाँ पे, एंड दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. क्लियर? लेकिन जब हम अब इस कंडक्टर को, ठीक है, जब हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे
towards a battery which is having a potential difference of let us suppose V volts, अब इसमें जो electrons है, then these electrons will experience an electric force and this negative plate will drive the electrons away from it towards the positive terminal of the battery. तो ये electrons move करेंगे in a particular direction and that particular direction constitutes that particular direction of the charges constitutes the electric current. अब जब ये electrons move करेंगे, they will suffer frequent collisions with the metal kernels. और जब इनको collisions होंगे, that is what is the obstruction to the flow of the current. और उसी को हम नाम देते हैं resistance. So resistance is the opposition or obstruction to the flow of the current, which in case of metallic conductors is due to the collision of the free electrons with the metal kernels of a conductor. Okay, got my point? Now एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ये रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. सो मींस अब हम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस रेजिस्टेंस को. तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. मींस दैट अगर हमारे पास दो वायर्स है, एक बड़ी सी वायर है और एक छोटी सी वायर है, एक ठीक है, तो अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे लाइक इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दे आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर, देन अगर हम बताएंगे इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है या इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट जो बड़ी वायर है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और जो ये छोटी वायर है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. सो लॉन्गर द लेंथ ऑफ द वायर लार्जर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. ये आपको सीधे ही मालूम है कि एक बड़ा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे इन लॉन्गर पाथ कंपेयर टू ए शॉर्टर पाथ, तो लॉन्गर पाथ में वो ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे उनके, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी. स्मॉलर पाथ में कम कोलिजन्स होंगे तो इसलिए रेजिस्टेंस भी कम होगी. और दूसरा फैक्टर जो है देखा गया है कि जो ये रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो जो ये कंडक्टर हमारा है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वायर का. मतलब क्या थिक वायर है या थिन वायर है. अगर थिक वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, अगर थिन वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा यानी अगर आपकी थिक वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा यानी आपको थिन वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. क्लियर? लेट अस सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इफ यू आर हैविंग अ कंडक्टर having a definite length and another conductor having the same length, but here if its cross sectional area is A and this is having a cross sectional area of A and this A is greater than A, तो अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसके अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे जैसे कि लेंथ कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो व्हाट विल हैपन इस वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इस वाले की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी फर्स्ट वन की, तो दूसरे की कम होगी. ठीक है, तो कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स व्हाट वी कम आउट, व्हाट वी रीच एट, it will be R is directly proportional to L by A. Okay, now again changing the proportionality into equality we have to multiply by a constant, and here that constant is rho RHO. ठीक है, and this rho is known as the electrical resistivity of a conductor. It is known as the electrical resistivity of a conductor, या इसका दूसरा नाम है specific resistance. या इसका दूसरा नाम है specific resistance. एक पॉइंट मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको कहना है कि जो ये रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट है ओम. ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है V by I is equal to R, तो अगर हम V को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे इन वोल्ट्स, करंट को मेजर करेंगे इन एम्पियर्स, देन जो रेजिस्टेंस होगी वो हमें मेजर उसका जो यूनिट होगा दैट विल बी इन ओम्स. क्लियर? सो इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर नोन एज ओमेगा. ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पे R हमें बराबर आ गया रो L by A, means that what is rho? Rho is the electrical resistivity of a conductor or specific resistance. Clear? Now, what is this electrical resistivity or specific resistance? Resistance of a conductor. ठीक है? As per the relation of the resistance goes, it is rho L by A. तो rho किसके बराबर? Rearranging the equation, what we are getting? It will be rho is equal to R A divided by L. ठीक? तो if A is equal to, अगर मैंने area of cross section of a conductor लिया 1 centimeter square और length मैंने ली, so length मैंने ली 1 centimeter, ठीक है? तो जो ये रो आएगा, it will be equivalent to, substitute the values, A 1 centimeter, 1, L also 1, it will goes, so rho will be equivalent to R. So electrical resistivity is actually the resistance offered by a conductor having an area of cross section 1 centimeter square and a length of 1 centimeter. ठीक है? So electrical resistivity is the resistance, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं electrical resistivity is the resistance offered by a conductor of 1 centimeter length and having an area of cross section equal to 1 centimeter square. Clear? तो this would be the definition of the electrical resistivity. Sometimes हम ऐसे भी कहते हैं कि area into length is equal to volume of the conductor. इसको मैंने V से लिया. अगर ये V बराबर है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो रो इज इक्वल टू R. तो इस तरह से हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं electrical resistivity is the resistance offered by 1 cubic centimeter of a conductor. अगर आपने कंडक्टर लिया है, इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने लिया, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, that will be the electrical resistivity or specific resistance. ठीक है? या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी हम कह सकते हैं इसको. अगर मेरे पास, ठीक है, तो दो मेटल प्लेट्स, दो इलेक्ट्रोड्स मैंने लिए और ये इलेक्ट्रोड्स मैंने 1 सेंटीमीटर अपार्ट किए और इनका एरिया है यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, इनका एरिया जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है? तो तब जाके अगर मैंने इसके दरमियान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान, then the resistance offered by the electrolytic solution at that time will be the specific resistance. So in case of electrolytes हम ऐसे बता सकते हैं what is a specific resistance. It is the resistance offered by an electrolytic solution kept between two electrodes 1 centimeter apart and having an area of cross section 1 centimeter square. या हम इस तरह भी बता सकते जैसे मैंने इट इज द resist electrolytic solution के लिए it is the resistance offered by 1 cubic centimeter, ठीक है, of an electrolytic solution. अगर मैंने इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट ली, फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो लूंगा कितनी रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम, दैट विल बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और electrical resistivity of a conductor. Okay? Now we will move onwards to conductance. C से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कंडक्टेंस का मतलब है how much easily the current is flowing through the conductor. So it refers to the ease or it measures the ease with which the current flows through the conductor. कितनी easily
करंट फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज द कंडक्टेंस। तो इसका मतलब है मैथमेटिकली अगर हम बताएंगे, कंडक्टेंस वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना, is with which the current flows through the conductor. So मतलब mathematically it is defined as the reciprocal of the resistance, ठीक है, reciprocal of the resistance हम इसको बताते हैं। तो अगर मैं बताऊंगा what will be the unit of conductance, it would be C is equal to R को है ओम, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, सो इट वुड बी पर ओम, ठीक है। इस पर ओम को हम मोह भी कहते हैं और इस मोह को हम साइमन भी कहते हैं। इसका मतलब है 1 साइमन जो है दैट इज इक्वल टू 1 मोह। क्लियर? तो यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बताई थी रो, एक पॉइंट जो मैं भूल गया, जो मुझे यहां पे कहना है, इट इज आर ए डिवाइडेड बाय एल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यूनिट मैंने इसका नहीं कहा था, तो अगर मैं यूनिट बताऊंगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इट विल बी आर का है ओम, एरिया का है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर काट, इट विल बी ओम सेंटीमीटर। सो कभी कभार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज ओम सेंटीमीटर। तो इसी तरह यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इट इज वर्ड पर ओम, या मो भी इसको कहते हैं पर ओम को, या साइमन भी, यानी 1 साइमन इज इक्वल टू 1 मो। क्लियर? सो दिस इज द स्पेसिफिक, दिस इज द कंडक्टेंस। नाउ for more term, the last one but not the least one, it is the specific conductivity, specific conductance या electrical conductivity. Again, as per the definition हम कहेंगे it is the reciprocal of the electrical resistivity, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे कापा। कापा इज द लेटर, ग्रीक लेटर विच डिजिग्नेट्स द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो कापा विल बी इक्वल टू 1 ओवर रो, बट रो जो है दैट इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो इन दिस इक्वेशन, so we will get kappa is equal to 1 by ra divided by l, which will be equal to all, it will be L divided by RA. So kappa will be equivalent to L divided by RA. Okay. So, but we know that C is equal to 1 over R. Conductance is equal to reciprocal of the resistance. So, हम लिख सकते हैं ना इसको kappa is equal to, this is 1 divided by R. So इसको मैं 1 by R मैं लिखूंगा, इसको ऐसे 1 over R into L by A is equal to 1 over R, C के बराबर है, तो मैं लिखूंगा C into L by A. Okay, so kappa is equal to C conductance into L divided by A. Now अब मैं कंडीशंस दूंगा। अगर मैं L लूंगा 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, तो कापा किसके बराबर आएगा? So that means electrical conductivity is actually the conductance offered by a conductor of 1 centimeter length and having an area of cross section 1 centimeter square. ठीक है? Again फिर से, it is the conductance offered, electrical conductivity or specific conductance is the conductance offered by the conductor of 1 centimeter length and having an area of cross section 1 centimeter square. Again, area into length is equal to the volume of the conductor. ठीक है, is equal to V से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर मैं इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है, तो कापा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो हम कहेंगे इट इज द electrical conductivity is actually the conductance offered by 1 cubic centimeter of the conductor. अगर हमारे पास कंडक्टर एक है, इसका मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लूंगा, तो उसमें उसकी कंडक्टेंस कितनी है, दैट रेफर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगेन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ
डिफाइन करूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मैं कहूंगा अगर मैं दो, ठीक है, मेटल प्लेट्स लूंगा, ठीक है, तो इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान इन दो मेटल प्लेट्स के ये दो मेटल प्लेट्स के दरमियान मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा and they are separated by 1 centimeter length, and these electrodes are having an area of cross section 1 centimeter square, means that इसकी length भी 1 centimeter है, breadth भी 1 centimeter है, that will be 1 centimeter square. So जब मैं दो इलेक्ट्रोड्स लूंगा जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, उसके दरमियान में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखूंगा, then the conductance offered by the electrolytic solution will be this electrical conductivity. So electrical conductivity is defined as the conductance of the electrolytic solution kept between two electrodes 1 centimeter apart and having an area of cross section, with each electrode having an area of cross section 1 centimeter square. या अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हम लेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, कि अब इस क्यूब में कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्यूब हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड एंड 1 सेंटीमीटर हाइट. उसके बाद उसमें कितना सॉल्यूशन आएगा, जितनी उसकी कंडक्टेंस होगी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की of 1 cubic centimeter, that will be the electrical conductivity. So electrical conductivity of an electrolytic solution refers to the conductance of 1 cubic centimeter of an electrolytic solution. Clear? Okay, so now this is the specific conductance. इसके बाद हम जाएंगे इस यूनिट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है इनके यूनिट्स. सो कापा इज इक्वल टू, हमें पता ही चल गया है, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस L by A, या हम इसको लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय RA, ऐसे भी. तो इससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन हो. लेट अस सपोज मैंने ये वाली ली, तो L का है, लेट अस सपोज L मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, सॉरी L का यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस का ओम है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर इसके साथ कट होगा तो ये ओम ऊपर जाएगा, ये पर ओम आएगा. 1 सेंटीमीटर यहाँ पे था, ये ऊपर जाएगा, इट विल बी पर सेंटीमीटर. सो पर ओम पर सेंटीमीटर विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मो पर सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पर ओम इज इक्वल टू मो. या मैं लिख सकता हूँ साइमन पर सेंटीमीटर. ओके, सो दिस वुड बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल. कभी आपको क्वेश्चन ऐसे वहां पे पूछा जाएगा, व्हाट वुड बी the conductance of an electrolytic solution kept between two electrodes 1 centimeter apart and having an area of cross section 4 centimeters square with a resistance offered equal to with a resistance offered equal to 5 ohms. सो आपको बताना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है. अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रखा है जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और जिसका हर किसी इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दी गई है दैट इज 5 ohms. तो आपको बताना है व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर मैं बताऊंगा आप कैसे करोगे तो आपको जल्दी से आइडिया आएगा. आप कहोगे सर मैं कापा रो एल बाय ये फार्मूला यूज करूंगा, बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें
बताया जा रहा है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है कि यू हैव बीन गिवन हाउ मच द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये इसके साथ आपको ताल्लुक ही नहीं है कुछ, क्योंकि आपको कंडक्टेंस मालूम करना है और आपको पता है कंडक्टेंस जो बराबर होता है इट विल बी 1/r, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और आपको रेजिस्टेंस दी गई है, सो यू डोंट हैव टू डील विद दीज वैल्यूज। ऐसे भी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको डिवाइड किया जाता है, आपको ये लेंथ का भी बताया जाता है कि इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय दिस मच डिस्टेंस, दे आर हैविंग दिस मच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस दी जाती है। तो आप ताकि आप ये इस तरह की इक्वेशंस यूज करें और L/A, लेकिन फिर भी आप यू विल नॉट रीच टू द कंक्लूजन व्हाट वुड बी द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर द मैथमेटिकल रिलेशनशिप C = 1/r। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपको दी गई है, इसके इनके साथ आपको ताल्लुक ही नहीं है कुछ। आप लिखोगे C = 1/r के बदले में 5 लिखूंगा, इट विल बी 5 1s 5 2s 10, सो इट विल बी 0.2 ohm, 0.24 ohm, ठीक है, या 0.2 साइमन या 0.2 mho। क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट अस गो फॉर a numerical question, really a good one। तो आपको क्या है, लेट अस सपोज आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चलो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस of an electrolytic solution kept between two electrodes separated by 2 centimeters square and having an area of cross section and having an area of cross section 4 centimeters square, ऐसे with an electrical resistivity of, चलो electrical conductivity हम लेंगे, हम resistance आपको मालूम करनी है, conductivity of 8 × 10⁻⁻7 साइमन पर सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ दी जा रही है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, एरिया दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको कंडक्टिविटी दी जा रही है 8 × 10⁻⁻7 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एज पर द रिलेशनशिप आप सीधे इसमें कापा पे जाओगे, आप लिखोगे कापा जो है वो बराबर है L/R है, ठीक है। आपका लेंथ भी दिया गया है, आपका एरिया भी दिया गया है, आपका कापा भी दिया गया है, आपको डिटरमाइन क्या करना है, R। इससे आप इजीली रीअरेंज इक्वेशन करोगे तो यू कैन फाइंड द R। आप लिखोगे इट इज, आप लिखोगे यहाँ पे R = L/by kappa into A, लिख सकते हो ना। तो लेट अस सबस्टिट्यूट द वैल्यूज, यू कैन राइट R = L is 2 divided by kappa it is 8 × 10⁻⁻7 into 1/, एरिया कितना है 4, so it will be 2 1s 2 2s 4, clear। So it is 2 8 16, so it is 1/16, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, ये आएगा 10⁻7, ठीक है। So let us go for it is division, 4 4 16, 4 2 is 8, 4 5 is 20, 4 1 is 4 6 is 24, 4 2 is 8, 4 5 is 20, so it will be 0.625 into 10⁻7, that is equivalent to, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लाऊंगा, मैं लिखूंगा 6.25 into 10⁻6, ठीक है। So it would be, what would be the unit, ठीक है। तो जब इसकी कंडक्टिविटी ये होगी तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, इट विल बी 6.25 into 10⁻6 ohm, so that would be the resistance, क्लियर। अगर मैं कहूंगा कि व्हाट वुड बी द, ऐसे हम कहेंगे, कुछ और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt, व्हाट वुड बी द करंट, करंट क्या होगा, ठीक है। आपको करंट मालूम करना है, तो आप कैसे इसको करोगे, आप ओम्स लॉ के हिसाब से करोगे, V/I = R, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने अभी निकाली
पोटेंशियल डिफरेंस आपको 1 वोल्ट दिया गया है, तो यू कैन राइट V बाय R इज इक्वल टू R आई। करंट निकल सकता है आपको इस रिलेशन से। तो कैसे, मैं कैलकुलेट करके दूंगा। So you can write I is equal to V by R is equal to V is 1 volt, R is 6.25 into 10 to the power 6. Clear? So you can write this portion as 100 by 625 into ये ऊपर जाएगा, it would be 10 to the power minus 6. Clear? So 5 ones, 5 twos, 10, 5 fives, 25, 5 twos, 10, 5 twos, 10, 5 fives, 25, 5 fours, 20, 5 fives, 25, 5 eights, 40, 5 ones, 5 sixes, 30. Okay, so it would be 0.16 into 10 to the power minus 6. It would be 1.6 into 10 to the power minus 7 amperes. This would be the current. Okay, so this is all about this terminology. So we have finished the terminology. Okay, thanks a lot. Goodbye.